Hi guys, good evening everyone. I'm coming again with my new note. It's a regular topic which is I seen many people have seen my that video is business decisions. I thought I have to do another video which is a bit elaborate we have to discuss and certain real time examples I have to tell you, so which is too much help to you to understand one's critical situation, how you see a decision to be taken off. And in this conversation I have to use Hindi also to understand such people who is much more um comfortable in Hindi. Not understand, everyone is understanding English, but in Hindi also it's bit quite touchable. First of all, that day I was discussed the decision should be goal oriented. So what happened if your goal oriented decision should be, so the time of decision your goal should be very crystal and clear. Clarity is there so that any decisions obstacles will come. Obstacles, many things will be, maybe your weakness, maybe your emotional factor, maybe your financial factor, maybe your transactional factor, maybe your operational factor. So all the factors you overcome when your goal is set. So it's called kind of ambitious mentality. Decisions always should be required in business, but certain peoples are still believe in diplomacy. They are doing the diplomatic decision, they are doing critical decisions, they are doing you can say general decisions. Means 5% saying something and which is more relevant, they can take it forward and go. Today, I will come bit uncommon factors, which is may it will help to you, because I have experienced it, and my videos always I try to interact with you directly. I don't want to edit something. I don't want to put some new things on it. Means my videos I'm not able to do any edit version or any kind of show up to you. Whatever I understood, I try to deliver to you, which is may impact directly to yourself. So today I just want to tell you, uh, whenever we take decisions in business or life. Today we are talking about the business. The business always, we have to already I told the short term goals and long term goals. The goals always very clear, and that is should be very planned. Once you planned and it is finalized, you try to stick on it. I never said strict means you should not change time to time, because every time a particular decisions meaning something. Because maybe this time some decision you took, after some time the same decision would not be relevant to you. So based on the transactionals and your goals and situation based, we take decisions. So one of my example I need to say, एक बार क्या हुआ, मैं एक कंपनी में था। तो उस कंपनी में मैं जब काम करता था, तो मैं तब जूनियर था और जस्ट सीनियर बना था। और उस वक्त मुझे कुछ सस्पिशियस एंट्री एंड ट्रांजैक्शन दिखे जो मेरा जूनियर कर रहा था। उस वक्त मेरे माइंड में ऐसा है कि थोड़ा नाम कमाऊंगा, बॉस के सामने अच्छा बन जाऊंगा, एंड आई हैव टू शो अप माई सेल्फ। हाँ, मैंने कुछ पकड़ा। सो आई जस्ट इमीडिएटली गो टू माई एमडी, और मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, ये फ्रॉड एंट्री वगैरह कर रहा है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इट शुड नॉट बी हैपन सर, इट शुड बी चेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए और वो गलत कर रहा है। तो आई सरप्राइज व्हेन बॉस वॉज रिप्लाइड मी। मैं सोचा था कि शायद बॉस मेरे बात को एक्नॉलेज करके इमीडिएटली कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मैं थोड़ा बॉस के सामने अच्छा बन जाऊँ। आज इस जगह पे खड़े होके सोचता हूँ कि अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही हैं, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसीजंस इन योर लाइफ। इफ़ योर गोल सेट,
that you should be good, you should be honest, you should be accurate, real. So automatically, based on your this character and your you can say स्वभाव बोलते हैं, so people will acknowledge you, they will take decisions on you better. तो क्या हुआ, मेरे एमडी ने मुझे एक ही बात कहा कि आज तुम्हें पता है, जब से वो आया है, उस बंदे का बारे में बॉस ने कहा कि जब से वो आया है तब से मैं जानता हूँ ये वो करता है, फिर भी मैं चुप हूँ. मैं आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज हाउ ओनर इज सेइंग दैट कि लड़का गलत कर रहा है फिर भी उसने उसको कभी रेक्टिफाई नहीं किया. तो बॉस ने मुझे कहा, हम एक उस वक्त ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे थे. तो बॉस ने कहा कि तुम एक ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का, उसको ऐसा बनाओ कि इस तरह का बंदा भी वो कर ना पाए जो फ्रॉड कर रहा था. आई एम सरप्राइज्ड, आई सीन दैट कि बॉस का क्या गोल है, हाउ ही टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस. मुझे आई एम सो अप्रिशिएट, मेरा लाइफ लर्निंग था वो. एंड दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन व्हाट आई सीन इन माई लाइफ. बहुत सारे, क्योंकि वो गलती को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन गलती को ठीक करने का जो तरीका था उनका, वो काबिल तारीफ था. उन्होंने कहा कि मेरा सिस्टम ऐसा मैं बना दूं कि कोई चाह के भी चोरी ना कर पाए, क्योंकि मैं हर किसी आदमी के पीछे हर किसी आदमी को नहीं लगा सकता. तो ये बिजनेस लेसन भी है कि हमारे बिजनेस कंपनीज में हमारा सिस्टम, या फिर हमारे ट्रांजैक्शन सिस्टम हो, हमारा वर्क फ्लो हो, हमारा जो पूरा प्रोसेस हो, इतना कॉन्क्रीट हो जाए कि कोई उसमें गलती ना कर पाए. तो आई वॉज दैट डे आई लर्न समथिंग फ्रॉम हिम कि गलतियों को भी किस ढंग से सोच के साथ ठीक किया जा सकता है, कि भविष्य में ऐसे आदमी को भी रखा जाए और तो भी मुझे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उस बंदे में बाकी बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ थे जो बॉस ने उसको ज़्यादा आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है अगर हमारा सिस्टम सही हो. और एक टाइम आया, हमने हर वो एंगल सोचा, बैठ के लिस्ट आउट किया कि कितने ढंग से इस ट्रांजेक्शन को गलत किया जा सकता है, या फिर हाउ मेनी वेज वी हैव टू ब्रेक दिस प्रोसेस. और उसी ब्रेकिंग प्रोसेस को लिस्ट आउट करने के बाद हमने एक एक पॉइंट के ऊपर काम किया और लिंक करते गए, कनेक्शन करते गए. दिस इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ टॉपिक, बट हमने एक जगह पे उसको कंक्रीट किया. एंड फर्दर इट्स नॉट हैपेंड ड्यू टू दिस प्रोसेस. तो यहाँ पे मेरा ये जो स्टोरी आपको सामने मैंने लाया, जो रियल टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि आप सोचते कैसे हैं. वो सोच बहुत फैक्टर करता है किसी डिसीजन के ऊपर. आप क्या सोचते हैं कोई भी एक चीज़ को लेकर के, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपका अगर कोई एक गोल सेट है और वो बहुत क्लियर है आपके सामने, तब क्या होता है, छोटे मोटे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपको इफ़ेक्ट नहीं करने देते, वो आपको हेल्प ही करते हैं. ऐसा लगता है कि हर वक्त आपको फील होगा कि ये डिसीजन मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए शायद हेल्प कर रहा है. तब कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, वो चैलेंजेस बन जाती है. हम देखते कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना कहकर जब चैलेंज बोलते हैं, तो हमारे साथ एक बात आ जाती है कि हम उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए. तो ये एक तरीका था, मैंने अपने लाइफ में बहुत बहुत इंस्पायरिंग था, तो मैंने आपको शेयर किया. ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है कि कैसे सोचते हैं. एक मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि मैं एक बार एक जूनियर किसी को मैं इंटरव्यू ले रहा था. तो मैंने उस इंटरव्यू में उससे कुछ भी पूछूं, वो नर्वस के चलते बता नहीं पा रही थी. तो मैंने जस्ट एक उसके नज़र में एक सोच दी कि मैं देखना चाहता था कि सही में काम करता है क्या. मैंने बोला कि तुम एज एन एम्प्लॉय नहीं, एज एन ओनर अपने माइंड को सेट करो और इसके बारे में बताओ मुझको.
सडनली मैंने ये जब सोच उसके अंदर दिया, उसने वो सारे बातें कहीं जो एक्चुअली वो प्रोसेस में रिलेटेड था। जस्ट एक माइंड सेट चेंज होने से एक आदमी के अंदर कितना बदलाव आता है। तो माइंड सेट कहाँ से तैयार होता है? हमारा गोल से। हम सोचते कहते हैं, हम हर चीज़ को एक छोटे छोटे पार्ट में अगर गोल में बांट दें तो हमारा जो चलने का तरीका है वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता है। और हर जगह हम सही हो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारा गोल सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। समय के साथ उस गोल को हमें देखना होता है, हमें उसको रिव्यू करना होता है, हमें उसे समझना होता है। इससे क्या होगा, हम जितना अपना गोल को क्लियर करेंगे हमारा स्टेप उतना सही होता जाएगा। हम उतने उस गोल को क्या रियलिस्टिक वे में लेते जाएंगे। गोल और कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस में देखें कि हम जब बजट बनाते हैं, बजट बनाने का मतलब क्या है, एक सटन गोल ही तो है जिसे मुझे अचीव करना है। और जितना उसको फोरकास्ट के हिसाब से देखते हैं कि कितना रियलिस्टिक है, तो बजट जितना रियलिस्टिक हो तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है ऑलवेज। तो अपने लाइफ में मैं ये बिजनेस ओनर हो, एमडी हो, मैनेजमेंट हो, उनको एक सिंपल एक व्यू दे जाता हूँ लाइफ में कि अगर डिसीजन लेने हैं तो गोल ओरिएंटेड एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड रखें, कॉम्प्लिकेशन ना करें। सोल्यूशन ओरिएंटेड जितना होगा, हम हर चीज़ में एक सोल्यूशन देखना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है कि वी बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। हर चीज़ का सोल्यूशन हमको मिलने लगे, क्योंकि बिजनेस में कहीं आप रुक नहीं सकते। यू कैन नॉट बी स्टक, यू हैव टू फाइंड आउट सम सोल्यूशन। और सोल्यूशन माइंडसेट में ये गोल रहा तो बहुत जल्दी, बहुत इजीली हम डिसीजन ले सकते हैं। जितना जल्दी और जितना बेटर वे डिसीजन लें, उसमें हमको आगे बढ़ने में फ़ायदा होता है। दूसरी एक बात मेरे दिमाग में आती है, कोई भी पहलू में या कोई भी विषय में या कोई सिचुएशन का जब डिसीजन हम लेते हैं, वी नीड टू सी द 360 डिग्री एंगल ऑफ दैट सिचुएशन। मुझे उस चीज़ का पूरा बोल सकते हैं ना, 360 डिग्री मतलब पूरा राउंड, हर कुछ और बचा नहीं, उस चीज़ को देख लेना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन मेकिंग है। अगर उस हिसाब से हम किसी भी चीज़ को देखें तो सोल्यूशन बोलने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ जाती है और खुद होने लगती है। तो ये एक माइंडसेट है। आज मैंने दो बातें कही, एक है गोल ओरिएंटेड सोल्यूशन मेकिंग डिसीजन, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट या विषय में सोल्यूशन लेना है, सो वी नीड टू सी द 360 डिग्री एंगल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर दैट। तो it will be much helping to you if you see this way in your business. And I will always try to help you if you comment me on this any topic, so that I can discuss about that and you can conclude the thing. तो जो भी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बेस पे बात करता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोलता हूँ। मेरे जो वीडियोस होते हैं उतने सिस्टमेटिक नहीं है, उतने सुंदर मैं कर नहीं पाता हूँ और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। जो है वो कहना चाहता हूँ, और उससे अगर आपको ज़रूर हेल्प होता है तो मेरा उद्देश्य ही है कि किसी तरह इस मिड इंडस्ट्री में एक सोल्यूशन मेकिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बिजनेस प्रोसेस, वर्क फ्लो प्रोसेस सही हो। जितना ये मिड इंडस्ट्री उन्नति करेगी उतना हमारे इकोनॉमिक को बहुत हेल्प होगा। इन थोड़ी सी बातों के साथ मैं अपना आज टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और कोशिश करें जीवन में या बिजनेस में जो भी करें सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही करें। थैंक यू वेरी मच।